Okay, so till now we have already discovered about the bivariate and univariate plots. So univariate where only single variable is being calculated, and bivariate is where two variables are being considered for the implementation. And now we are going to discuss the multivariate plotting. So yesterday we started somewhat of it. So in multivariate, when we have multiple variables for the comparison, we have multiple variables for the yes. Yes, we have a few multiple variables for the comparison, and now here we are taking this file that is a footballer's data set. Footballer's data is there. In this data, there are a lot of parameters are there about the footballers. So initially, let me explore this. So when we have imported this, now this data is available with us. And in at initial level, what we are doing is we are doing some data editing in order to replace the unwanted value with few values which we might need. Okay. So here this those implementations we have done. Then we have seen the footballers shape. So 17,981 players are there. For individual player, one row is there and 77 columns are there. And now we are seeing that there is overall and value points are there. So at initial level, what we are going to do is we are going to um, uh, do comparison between values and overall score, right? So there are multiple positions are there in football. There are center, center half, center backward, then striker, goalkeeper, center middle, right, left winger, right winger, center forward. So all these positions are there. First of all, based on positions, we have tried to take the values, unique values and their individual counts. Okay, so these are the unique values in the position. These all are the positions in the football game. Okay, now you can see here we have tried to plot between value and overall. So value is that this might be an amount. No, this might be an amount which might have been spent off each player, and overall is the performance score that player has achieved from various games and all. So there can be different agencies who have released this, and now, initially, basically, we are plotting between value and overall. So the graph you are seeing, this is basically the plotting of value and overall only. Okay, now the third parameter we are including is position. So anyway, if we see in normal cases, this entire graph is just a comparison of two variable only, right? But here we are including a third dimension, that is position, as a representative, right? So in position, we have not taken all position, we have taken only striker, goalkeeper, and center forward. Only these three things has been taken, right? If you don't want just these three things, you can remove this part. This part, this entire part that you are seeing, this can be removed, right? So if I just remove this part and I execute this now, so you will be able to see that all the positions will be represented on the graph itself. Because now data is huge, it might take a time. So you can see now all the positions, these all are the positions, all the positions has been plotted, and it is also giving the same kind of look and feel which only three players were there. So this is we have not
selected any particular position. So all positions are plotted. If we remove this U part, if we delete this U part, then also you can see, suppose if we remove this and we run this part, okay? So then you will be able to see now all colors are same, you can see, because we have removed the hue. Now all the colors are same, all everything is feeling exactly same. So basically this position is giving you the color of with this overall process. Okay. So now what I am giving is hue is also there, and within this hue, what kind of players you are going to implement. So this is striker, goalkeeper, and center forward. Only three has been implemented, and you can see those colors are visible over here. Okay. So these you can change those colors with the different kind of markers as well. So these are all are the markers. So these markers will be O for striker, X for right finger, and star for left finger. So like that, these markers can always be changed. Okay, to give an extra dimension, right? So this is what is a scatter plot again, and we saw the scatter plot in two dimension as well, upper as well. This is also a scatter plot, and here in third direction we are again giving a scatter plot over here. Okay. Now the next plot is group plot, group box plot. Very important plot, and mostly used for checking the data quality, right? To represent the data quality in real sense, or to see if there are many extreme values or the one-sided value or other-sided value, we are generally using this box plot. So box plot is demonstrative plot, and it takes the advantage of grouping. And now see, here we have again we are doing the implementation. Here in box plot again you are seeing we are doing the implementation between overall and value only, right? So earlier with here with this we took the LM plot. Now here we are taking SNS box plot. So both our packages are under Seaborn only. So this is also Seaborn, and this is also Seaborn, and now we are going to implement the box plot. This is also under Seaborn. So SNS we have taken, and in this what we are doing is X is equal to overall and value. Between overall and value only we are plotting, and data is it taken as F, right? So F is created as a new data set. Under this data set we have done some processing, so that processing is this. Okay, what we are doing is, first of all, we are not taking everything in this, because you can see in the footballer data set there are 77 columns are there. Okay, so we are not going to take all 77 columns. We are just going to take this value, overall, aggression, and position. Only these four columns we are keeping over here. And in the rows, we are not taking all 17,000 rows. We are only taking the rows which are having position in striker, goalkeeper, left finger, and right finger. Only these four positions we are taking. Okay, understood? आर यू गेटिंग दिस? ये सारा जो इम्प्लीमेंटेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये सब पूरा इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ नमपाई और पैंडास का ही इम्प्लीमेंटेशन है। मेनली पैंडास का इम्प्लीमेंटेशन है इसमें। कोई भी नई चीज ऐसी नहीं है जो हम पैंडास के बाहर कर रहे हो। केवल जो विजुअलाइजेशन जहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, वहां पे हम कुछ विजुअलाइजेशन से रिलेटेड पैकेज ऐड कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें हम पैंडास पे ही कर रहे हैं। और आप भी जब अपना प्रोजेक्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वहां पे 90% टाइम आपको पैंडास पे ही काम करना होगा। यू आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग ऑन, क्योंकि और किसी पैकेज में ये चीजें अवेलेबल नहीं है, राइट? सो ये सारे जो स्लाइसिंग डाइसिंग ऑपरेशन है कि क्या क्या हमें सेलेक्ट करना है, कौन सी रो सेलेक्ट करनी है, कौन से कॉलम सेलेक्ट करने हैं, ये सारी चीजें हम पैंडास के थ्रू ही सेलेक्ट करेंगे। ओके, अंडरस्टूड? नो।
So at initial level, what we have done is we have taken striker, goalkeeper, left winger, and right winger. These rows only we have taken, and only out of 70 columns, these four columns have been taken at the first point. Right now, at the second point, second filter is applied where all scores above 83, overall score above 83 has been taken, and then all scores under 88 has been taken. So now you can see we have not now we are not taking the scores over 88 and below 83, right? So यहाँ पे भी हमने ये दो फिल्टर लगा दिए कि 83 से ऊपर वाले और 88 से नीचे वाले, ये हमने दो फिल्टर लगा दिए। और ये जो एग्रेशन यहाँ पे हमने यूज किया था, तो एग्रेशन एज अ जब हमने ऊपर देखा था तो एज अ ये कैरेक्टर आ रहा था, तो हमने यहाँ पे इसको टाइप इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हम यहाँ पे इसको वैल्यू में लेके आ रहे हैं। ओके। और फिर अब हम यहाँ पे प्लॉट क्या कर रहे हैं, सिंपली ओवरऑल और वैल्यू के बीच में प्लॉट कर रहे हैं। जो जो पहले दो हमने यहाँ पे कॉलम लिए हैं, इनको हम प्लॉटिंग के लिए यूज कर रहे हैं। पोजीशन को हम यू के लिए यूज करेंगे, कलर्स के लिए यूज करेंगे, राइट? तो अब यहाँ पे हमने इसको एग्जीक्यूट कराया। अब यहाँ पे ये देखो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन के आया है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ और इसको नाउ यू कैन सी यहाँ पे अलग अलग इस तरह से बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये बॉक्स क्या है? यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये जो अलग अलग लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये आपकी रिप्रेजेंटेशन है। अब रिप्रेजेंटेशन किस तरीके का हम मान सकते हैं कि पहले तो देखो, अगर हम नीचे से देखें तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और ऊपर देखें तो एक हमारे पास ये एंडिंग पॉइंट दिखा। चलो ये ग्रीन वाले में देख लेते हैं, इस वाले में देखते हैं, बीच में है और उसमें सारी चीजें बैलेंस दिख रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक नीचे लाइन है और ये ऊपर लाइन है। तो ये सबसे नीचे और सबसे ऊपर लाइन हमें दिख रही है, ये लाइन है हमारी स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू, राइट? सो अगर हम यहाँ पे कंक्लूड करना चाहें कि ओवरऑल स्कोर अगर किसी का 86 है, राइट, ये 86 में आ रहा है, तो अगर किसी का ओवरऑल स्कोर 86 है तो उसकी जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज स्टार्टिंग समवेयर अराउंड वी कैन से 22 lakhs, एंड मैक्सिमम वैल्यू इज अराउंड 45 lakhs। अगर किसी का स्कोर 86 है तो उसकी जो वैल्यू वेरी कर रही है, मिनिमम 22 लाख एंड मैक्सिमम इज अराउंड 45 लाख। ये चीज समझ में आ गई? कीप ऑन सीइंग माई माउस मूवमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये क्या कर रहा है किसी भी ग्राफ में। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आपका ग्राफ क्या कर रहा है। सो मैं वही चीजें वन बाय वन बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू हमने देख ली, राइट? अब यहाँ पे जहाँ पे आपका ये ग्रीन वाला एरिया स्टार्ट हो रहा है, इस ग्रीन वाले एरिया में आपका एक नीचे का एरिया है, एक ऊपर का, एक नीचे की स्टार्टिंग है, एक ऊपर की स्टार्टिंग है। तो जो नीचे की स्टार्टिंग है वो इंडिकेट कर रही है कि जो आपकी वैल्यूज हैं उनका जो 20, चलो ये बीच वाली एक लाइन दिखाई दे रही है, ये बीच वाली लाइन हमारी इंडिकेट कर रही है हमारे ओवरऑल डेटा का एवरेज क्या है या मीन क्या है। ठीक है, ये डेटा का एवरेज क्या है या मीन मीन क्या है, ये यहाँ पे ये मिडिल वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है, एवरेज ऑफ डेटा और मीन ऑफ द डेटा, सॉरी, mean of the data, or you can say the central tendency of the data, right? इतना क्लियर है? नाउ जो नीचे की तरफ जो ये आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा है, दिस इज 25th परसेंटाइल। ठीक है, दिस इज 25th परसेंटाइल, और जो ऊपर की तरफ आपको डेटा दिख रहा है दैट इज 75th परसेंटाइल। ओके, इतना समझ में आ गया? तो यहाँ पे आपको चार चार चीजें दिखाई दे रहे हैं, 0%, 25%, 50%, 75% एंड 100%। ओके, जो सबसे ऊपर है वो 100% है, सबसे नीचे 0% है, बीच में आपका 25, 50 एंड 75। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई डाउट है?
ओके। सो ये आपका, अब इसको देख के आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे जो हमने ग्रीन वाला लिया, इसमें हमारा जो एवरेज है वो बिल्कुल बीच में आ रहा है। यहाँ पे ये जो यू ब्लू वाले आप देख रहे हो, तो ब्लू वाले में एवरेज क्या दिख रहा है, स्ट्राइकर में हमें जो एवरेज दिख रहा है वो बिल्कुल नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। राइट। जो हमारा 25th परसेंटाइल के बाद बाद एवरेज हमारा जाता दिखाई दे रहा है। ठीक है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे इस वाले ग्रीन में देखोगे, 84 वाला जो ग्रीन है, मेरा माउस देखो, उसमें हमें जो हमारा एवरेज वाली लाइन है वो हमें ऊपर की तरफ खींचती हुई दिखाई दे रही है। राइट। इसी तरह से यहाँ पे 83 में ये जो ऑरेंज देख रहे हो, उसमें भी हमारी जो मीडियम लाइन है, जो एवरेज लाइन है, वो हमें ऊपर की तरफ खींचती हुई दिखाई दे रही है। तो इससे हम क्या रिलेशन निकाल सकते हैं? इससे हम जो रिजल्ट निकाल सकते हैं वो ये है कि जो हमारे पास जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं उसमें जो हमारा 86 है, इसमें बहुत सारी बैलेंस्ड वैल्यूज हैं। राइट। बाकी में बहुत ही कम बैलेंस्ड वैल्यूज हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो मीडियन पॉइंट है या जो हमारा एवरेज पॉइंट है वो इधर से उधर मूव हो रहा है। यहाँ पे ये देखो नीचे की तरफ मूव हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, यहाँ पे ऊपर की तरफ हो गया, यहाँ पे नीचे की तरफ मूव हो गया, यहाँ पे नीचे की तरफ हो गया। तो इसका मतलब क्या है? नीचे की तरफ मूव होने का मतलब क्या है? नीचे की तरफ मूव होने का मतलब है कि इस डेटा में एक्सट्रीम वैल्यू बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से एवरेज हमारा एक तरफ खिंच रहा है। राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूज होती है, जैसे हमारे पास है 2 4 6 9 8, 2 4 6 9 8, 14, 16 एंड 18। ये हमारे पास 8 वैल्यूज हैं और एक वैल्यू है हमारे पास सपोज 200। राइट। तो अगर इन सबका आप एवरेज निकालोगे, राइट, तो एवरेज क्या होगा? 2 से 18 तक जो भी हमने वहां पे डाला वो तो हमारा होगा, साथ में हमने 200 को भी ऐड करके फिर निकालेंगे। तो जो हमारा एवरेज क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर हम यहाँ पे एवरेज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास है, सपोज 2 4 6 8 10 12 14 16 18, सॉरी 18 एंड 200। ठीक है। अगर आप यहाँ तक का एवरेज फाइंड आउट करोगे, राइट, तो हमने यहाँ पे दिया एवरेज, एवरेज, और यहाँ तक का हमने एवरेज फाइंड आउट किया, तो क्या आया, यहाँ का तक का एवरेज 10 आ गया। ठीक है। यही चीज अगर हमने अब यहाँ पे इंक्लूड कर ली और हमने यहाँ पे एवरेज दिया, ठीक है, तो एवरेज ऑफ यहाँ से यहाँ तक के बीच का एवरेज, राइट, तो अभी यहाँ पे 29 आ गया एवरेज। राइट। आप देख रहे हो ये जो 29 है, ये इन 9 में से किसी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। राइट। और ये 200 का भी को भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो ये किसी को भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हमारा जो एवरेज है वो एक तरफ हमारा खिंच गया है। किसकी वजह से? एक एक्सट्रीम वैल्यू की वजह से। राइट। तो इसी तरह से हमारे पास डेटा में भी जो वैल्यूज होती हैं वो कहाँ पे थे हम? हाँ। तो डेटा में जो हमारे पास वैल्यूज होती हैं, डेटा में वैल्यूज भी हमारी इसी तरह से एक तरफ खिंच जाती हैं। जो तो यहाँ पे अगर आप ये ग्रीन वाले में देखोगे, तो यहाँ पे ऐसी कोई इस तरह की एक्सट्रीम वैल्यू नहीं होगी, जिसकी वजह से ये जो हमारा यहाँ पे एवरेज है वो इतना वो दिखाई दे रहा है कि ये हमारा एवरेज बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। इसमें एक साइड में एक्सट्रीम वैल्यूज हो सकती हैं, इसमें ऊपर की साइड में एक्सट्रीम वैल्यूज हो सकती हैं, इसमें नीचे की साइड में एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे वैल्यूज प्रॉपर दिखाई नहीं दे रही हैं। तो दिस इज व्हाट इज बीइंग आइडेंटिफाइड इन बॉक्स प्लॉट। तो जब भी डेटा की क्वालिटी को आइडेंटिफाई करना होता है कि डेटा में बहुत ज्यादा अगर हमारे पास आउटलायर वैल्यूज हैं या अनवांटेड वैल्यूज हैं या अनएक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं जो कि हमारी डेटा में आ गई हैं, राइट, तो उन सारी चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पे बॉक्स प्लॉट को यूज करते हैं। ये चीज क्लियर है सबको? क्लियर है सबको?
राइट। तो ये सारी चीजें देखने से हमें क्या पता लगता है, वो हमने यहाँ पे दिया कि जैसे यहाँ पे हमें डिमॉन्स्ट्रेट हो रहा है कि गोलकीपर्स हैव मच लोअर एग्रेशन स्कोर देन स्ट्राइकर्स, एंड इन दिस प्लॉट द वर्टिकल एक्सेस encodes aggression score, and this is position. So grouping is extremely cumulative visual. It makes this chart very easy to interpret. However, it is very लो यूनिक डेटा, तो हमारे पास जो यूनिक डेटा है वो कंपैरेटिवली बहुत कम है, और ओवरऑल जो हमारे पास परफॉर्मेंस है वो बैलेंस परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि एक तरफ वैल्यूज एक्सटेंडेड है एक साइड में, इसकी वजह से ये सारी चीजें हमारे पास प्रॉब्लम है। ठीक है। इसी तरह से हीट मैप आता है। नेक्स्ट ग्राफ टाइप इज हीट मैप। तो हीट मैप हमें क्या करता है, हीट मैप हर वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ में कंपेयर कर देगा डेटा सेट में, राइट। और ये दोनों के बीच में एक कोरिलेशन वैल्यू को जनरेट करता है। तो बाकी आगे जब आप कोरिलेशन कभी पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि कोरिलेशन क्या होता है। अभी आपकी जानकारी के लिए बस जस्ट मैं बता देता हूँ, कोरिलेशन इज रिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल, राइट। रिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू टू वेरिएबल्स का मतलब है कि जो अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं तो दो वेरिएबल्स आपस में कितना कनेक्टेड हैं, आपस में कितना कनेक्टेड है इन द सेंस कि अगर वो 100% कनेक्टेड है तो हमारे पास वैल्यू वन होगी। अगर वो 100% कनेक्टेड नहीं है तो वैल्यू जीरो से वन के बीच में वेरी करेगी। ना ये वैल्यू जीरो से कभी वन से कभी ज्यादा होगी, और ना ही ये वैल्यू जीरो से कभी कम होगी। ठीक है। तो कोरिलेशन कॉफिशिएंट ऑलवेज लाइज बिटवीन, सॉरी, -1 एंड +1। ठीक है। -1 और +1 में लाई करती है। -1 यहाँ पे इसलिए आती है क्योंकि कभी कभी हमारे पास जो कोरिलेशन वैल्यू है वो निगेटिव में भी जाती है, निगेटिवली कोरिलेटेड होती है ना। कल हमने पढ़ा था निगेटिव कोरिलेशन। ये एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ रही है और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कम हो गई है, तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिवली कोरिलेटेड, राइट। एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ रही है, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी बढ़ रही है, दैट दोज बोथ आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड। ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे दोनों इन इन डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में हम कोरिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली इनिशियली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक्सेलरेशन, एग्रेशन, एजिलिटी, बैलेंस एंड बॉल कंट्रोल, इन पांच को हम आपस में कोरिलेट करके देखते हैं कि अगर हम प्लेयर के बारे में ये सारी चीजें फाइंड आउट कर रहे हैं तो पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये आपस में भी कोरिलेटेड है या नहीं है। बिकॉज अगर हम परफॉर्मेंस, किसी भी प्लेयर के परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो वो उस परफॉर्मेंस में बहुत सारे पैरामीटर होते हैं कि उसकी दौड़ने की स्पीड कितनी है, उसकी रेजिलियंस स्पीड कितनी है, वो कितने बैलेंस से बॉल को होल्ड करता है, या अगर वो एक जगह से दूसरी जगह तक बॉल को लेते हुए मूव कर रहा है तो किस तरह से वो अपनी बॉल बॉल को कंट्रोल कर रहा है जिससे उसको कोई डिसीव ना कर पाए। तो वो सारी चीजें भी मैटर करती हैं। तो आपस में ये कितना कोरिलेट करती हैं ये फाइंड आउट करने की कोशिश हमने डेटा के थ्रू करी है। ठीक है। तो डेटा में सिंपली हमने क्या किया, जो फिल्टर लगाना था वो हमने फिल्टर लगाया, जो नल वैल्यूज है वो हमने ड्रॉप किया। ठीक है। यहाँ पे ड्रॉप एनए आपको एक दिख रहा है। ड्रॉप एनए का मतलब है कि कहीं कहीं पे नल वैल्यूज भी हो सकती हैं, तो नल वैल्यूज को हमें अपने कंसीडरेशन में नहीं लेना है। ठीक है। नल वैल्यूज को जब हम अपने कंसीडरेशन में नहीं लेंगे तो हमारे पास बेटर रिजल्ट होगा इसमें, अदरवाइज रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। और यहाँ पे फाइनली लास्ट में किया है हमने, ये पूरी प्रोसेस जो यहाँ तक की हमने प्रोसेस की इस ब्रैकेट के अंदर की ये जो प्रोसेस है, दिस इज ऑल इज पाइथन पैंडास, एंड लास्ट में हमने यहाँ पे लगा दिया कॉर। ये कॉर जो है ये भी आप, ये आपका नंपाई के अंडर में था, कोरिलेशन, दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे इसने एक टेबल जनरेट कर दी जहाँ पे रो और कॉलम दोनों में सेम वैल्यूज हैं और दोनों के बीच में आपको रिलेशन दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे आपको जो डायगोनल में वन वन दिखाई दे रही है, तो वन वन का मतलब है एक्सेलरेशन, एग्रेशन विद एग्रेशन, एजिलिटी विद एजिलिटी, बैलेंस विद बैलेंस एंड बॉल कंट्रोल विद बॉल कंट्रोल। तो यहाँ पे ये वन 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 सब में दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब इसी तरह से इसमें अब एक अपर ट्रायंगल बन रहा है और दूसरा लोअर ट्रायंगल बन रहा है। तो अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल दोनों एक दूसरे के ट्रांसपोज फॉर्म है। ठीक है, ये मान के चलो। तो हमें दोनों देखने की जरूरत नहीं है, हमें या तो हम अपर ट्रायंगल देखें या लोअर ट्रायंगल देखें।
ये चीज क्लियर है? सबको क्लियर है? चिंकी, तन्वी, श्रेया, सचिन, योगी, योगेश, योगेश योगी, योगेश योगी सनी। एक बार दोबारा बताओगे? हम्म। ओके। सचिन, कहाँ तक समझ में आया था आपको? कहाँ तक समझ में आया था सचिन? सर जो अभी कोरिलेशन का बताया था माइनस का वहाँ पे। ओके। तो बेसिकली हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, सबसे पहले तो हमने फिल्टर लगाया कि हमें कौन कौन से जो वेरिएबल हैं वो हमें चाहिए, हमें अपनी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो ये हमने फिल्टर लगाया। ठीक है। और फिल्टर लगाने के बाद यहाँ पे हम यहाँ पे यहाँ पे ये जो काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम मैप फंक्शन लगा रहे हैं। तो इसमें मैप में हम सिंपली कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जितनी भी हमारी एन एन वैल्यूज हैं या नल वैल्यूज हैं, उनको हम ट्रीट करके और वहाँ पे जस्ट कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज लेके आ जाते हैं। तो डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे हमने वही किया है, लेमडा बी इंटीजर बी। इफ अगर वहाँ पे डेसिमल है तो डेसिमल वैल्यू, अदरवाइज वहाँ पे हमने डिफॉल्ट वैल्यू हमें दे देनी है। ठीक है। और जो नल वैल्यूज है वो हमने ड्रॉप कर दी। तो इतना तो प्रोसेस है सिर्फ हमें डेटा क्लीन क्लीन करने के लिए। वो और ये चीज़ सब पे अप्लाई होगी, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, एग्रेशन हो, एजिलिटी हो, बॉल कंट्रोल हो या बैलेंस हो। ठीक है, सब पे अप्लाई हो गई। इसके बाद अ, यहाँ पे हमने लगाया कॉर। ठीक है। तो कॉर है कोरिलेशन के लिए, कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए आपस में कैसे कोरिलेशन होगा, वो चीज़ हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। और कोरिलेशन की जो वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में वेरी करती है। तो अगर वैल्यू 0 से कम है, माइनस में जा रही है, इसका मतलब है कि बोथ वेरिएबल्स आर नेगेटिवली कोरिलेटेड। और अगर वैल्यू पॉजिटिव में जा रही है, इसका मतलब दोनों आर पॉजिटिव कोरिलेटेड। तो पॉजिटिवली कोरिलेटेड का मतलब है कि एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरे की भी वैल्यू बढ़ रही है, दैट इज पॉजिटिवली कोरिलेटेड। ठीक है। और निगेटिवली कोरिलेटेड का मतलब है कि एक वैल्यू बढ़ रही है, दूसरी की वैल्यू कम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन से सेल्स ऑफ आइसक्रीम ऑन इंडिया गेट। ठीक है। तो सेल्स ऑफ आइसक्रीम ऑन इंडिया गेट विद रेस्पेक्ट टू द टेम्परेचर। ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है इंडिया गेट पे, आइसक्रीम की सेल बढ़ जाती है। राइट। ये एक बहुत अजीब सा पैटर्न है जहाँ पे मीन्स आइसक्रीम का और मौसम का कोरिलेशन होता है। गिव मी मिनट, आई एम गेटिंग अ कॉल। ओके। तो व्हाट आई वाज टेलिंग, हाँ, कोरिलेशन ऑफ सेल ऑफ आइसक्रीम विद द टेम्परेचर। सो जैसे जैसे इंडिया में, दिल्ली में टेम्परेचर कम होता है, वैसे वैसे इंडिया गेट पे आइसक्रीम की सेल बढ़ जाती है। अब उसमें रीजन क्या हो सकता है? रीजन कैन बी अननोन कि अननोन, अननोन मैं नहीं कह सकता। तो रीजन बेसिकली इसमें यह है कि जैसे जब टेम्परेचर कम होता है, धूप लोगों को अच्छी लगने लगती है, तो लोग वहाँ पे ज्यादा घूमने लगते हैं। तो जैसे ही फुटफॉल बढ़ता है, अब जब वहाँ घूमने गए हैं तो वहाँ पे आइसक्रीम भी खाएंगे, क्योंकि ओपन स्पेस है। तो वहाँ पे आइसक्रीम सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड होती है, तो वहाँ पे आइसक्रीम भी खाएंगे। ठीक है। तो दैट्स हाउ दे बोथ आर कोरिलेटेड। ठीक है। अब इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ हो, बट डेटा यही कह रहा है कि जैसे जैसे आइसक्रीम की जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है, आइसक्रीम की सेल बढ़ जाती है। तो बोथ आर नेगेटिवली कोरिलेटेड। अब इसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि एक पॉइंट से नीचे जाने के बाद, अब जैसे टेम्परेचर बिल्कुल ही कम हो गया, बिल्कुल फ्रीजिंग टेम्परेचर हो रहा है, तो फ्रीजिंग टेम्परेचर में यही चीज आपके जो हिल स्टेशंस की जो 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 हिल स्टेशंस पे जो सेल होती है, वो तो हिल स्टेशंस पे भी सेल, जैसे जैसे पीक सीजन आता है तो पीक सीजन में सेल बढ़ जाती है। राइट। अब उसमें अगर टेम्परेचर से आप उसको कोरिलेट करोगे तो कहीं कहीं टेम्परेचर गर्मियों में भी बहुत कम रहता है, और कहीं कहीं ठंड में तो बिल्कुल ही माइनस माइनस में चला जाता है। बट पीक सीजन आते ही वो कंपैरेटिवली हिल स्टेशंस पे जो सेल्स है वो बढ़ जाती है, बिकॉज
फुटफॉल बढ़ जाता है, राइट? सो दैट्स हाउ दे आर कोरिलेटेड। ठीक है, तो वो निगेटिवली कोरिलेटेड है या पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, ये भी हमें हमारा फाइंड आउट करने का एक काम बनता है कि दोनों वैल्यूज हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा, एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू कम होगी। अगर पॉजिटिवली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, दैट्स हाउ दे बोथ आर कोरिलेटेड। तो जब हमने यहाँ पे इसकी टेबल जनरेट करी, तो टेबल जनरेट करने में क्या हुआ, अब यहाँ पे आप ये टेबल देख रहे हो, तो इसमें आपके रो में भी वही चीजें हैं और कॉलम में भी वही चीजें हैं, क्योंकि आपस में हम कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेयर करने में अब यहाँ पे जो आप डायगोनल वाला पॉइंट देख रहे हो, डायगोनल वाला पॉइंट इज 1, बिकॉज ये सेल्फ कंपैरिजन है। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन, एग्रेशन एग्रेशन, एजिलिटी एजिलिटी, आप अपने आप से ही कंपेयर कर रहे हो। तो अपने आप से कंपेयर करोगे तो क्या होगा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, सारे सही। जब हम ही मैंने ही पेपर बनाया है, मैंने ही एग्जाम दिया है, मैं ही चेक कर रहा हूँ, मैं ही नंबर दे रहा हूँ, सब सही है फिर। राइट, दैट्स हाउ। सो नाउ नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन विद एग्रेशन, राइट? अब हाँ, यहाँ पे अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल, तो अगर आप लोअर ट्रायंगल देखोगे, इसका जस्ट ट्रांसपोज फॉर्म अपर ट्रायंगल है, राइट? तो आपको दोनों देखने की जरूरत नहीं है, आप या तो लोअर ट्रायंगल चेक कर लो या अपर ट्रायंगल चेक कर लो, जैसे भी आपको फील होता है कि वो आपको चेक करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कोई भी वैल्यू नेगेटिवली कोरिलेटेड नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है कि सारी वैल्यूज पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, माइनस जीरो से नीचे की कोई वैल्यू नहीं है। अब वैल्यू कितनी, अब पॉइंट कितना आ रहा है हमारा वो देखना है, तो यहाँ पे 0.25। तो जैसे जैसे जो फिगर है वो जीरो की तरफ बढ़ती है, चाहे माइनस से जीरो की तरफ बढ़ रही हो या +1 से जीरो की तरफ बढ़ रही हो, जैसे जैसे वैल्यू जीरो की तरफ बढ़ेगी, दैट विल इंडिकेट कि हमारा जो कोरिलेशन की स्ट्रेंथ है वो कम होती जा रही है, हमारी जो कोरिलेशन है वो कंपैरेटिवली कम होता जा रहा है। सो दैट्स बिग थिंग। सो यहाँ पे अगर हम ये देखें 0.25, सो 0.25 मतलब इट इज वेरी नियर टू जीरो, मतलब बहुत कम कोरिलेशन है, बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है। इफेक्ट तो है, थोड़ा बहुत इफेक्ट है, लेकिन ज्यादा नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे 0.23 है, यहाँ पे आप देख सकते हो एग्रेशन और बैलेंस के बीच में 0.18 का कोरिलेशन है, राइट? तो ये जो आपके बहुत कम वाली वैल्यूज आ रही, तो इसका इसमें हम जनरली ये मतलब मानते हैं कि इसका बहुत ज्यादा कोई आपके आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, क्योंकि बहुत कम कोरिलेशन है। यूजली जो 0.5 0.6 0.5 से नीचे के कोरिलेशन होते हैं हम उनको मानते ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्रेशन और बॉल कंट्रोल के बीच में 0.54 है, मीन्स 50-50 है। ठीक है, यहाँ पे 0.67 है, अच्छा है। 0.70, 0.70, यहाँ पे 0.79, यहाँ पे 0.76, तो ये हाईली कोरिलेटेड है। एक्सेलरेशन और एजिलिटी दे आर कोरिलेटेड। ये है एजिलिटी एंड बैलेंस, दे आर रियली कोरिलेटेड। एजिलिटी एंड बॉल कंट्रोल, दे आर हाईली कोरिलेटेड। एक्सेलरेशन एंड बॉल कंट्रोल, दे आर हाईली कोरिलेटेड। तो अब हमें यहाँ पे पता लग गया कि कौन से वेरिएबल किसके साथ में हाईली कोरिलेटेड है। और इसी चीज को हमने यहाँ पे हीट मैप में हम इंप्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो हीट मैप में इंप्लीमेंट करते ही क्या होगा कि जो यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे कोरिलेशन की मैट्रिक्स दिखाई दे रही है, ये कोरिलेशन की मैट्रिक्स आपको यहाँ पे एक मैप के फॉर्म में दिखाई दे जाएगी। और वही चीज, अब जहाँ पे हीट ज्यादा होगी, जहाँ पे कोरिलेशन बहुत ज्यादा होगा, वहाँ पे ये लाइटर कलर है, जहाँ पे कोरिलेशन बहुत कम है वहाँ पे बिल्कुल डार्कर कलर है। तो इस तरह से ये आपका जो राइट साइड में दिखाई दे रहा है, ये आपका कलरिंग स्केल है कि अगर बहुत ज्यादा कोरिलेशन है तो जो कलर है वो लाइट हो जाएगा, और बहुत कम कोरिलेशन है, जीरो की तरफ जा रहे हैं, तो बहुत डार्कर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 1 1 1 देखो, पूरे बिल्कुल कलर कलर मुक्त दिखाई दे रहे हैं, फ्री कलर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 0.18 देखो, बिल्कुल सबसे ज्यादा डार्क दिखाई दे रहा है, 0.18 सबसे ज्यादा डार्क दिखाई दे रहा है। 0.25 काफी डार्क है, 0.24 काफी डार्क है। अब यहाँ पे अगर इसमें देखो 0.8 है, 0.7 है, 0.0, तो जैसे जैसे ये जो कॉफिशिएंट की वैल्यू जीरो की तरफ बढ़ती जा रही है, यू कैन सी इसकी डार्कनेस भी धीरे धीरे से बढ़ती जा रही है। अब लकीली यहाँ पे सारे केवल हमें 1 से 0 के बीच में ही दिखाई दे रहा है, तो सिर्फ वही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर निगेटिवली कोरिलेटेड रिलेटेड होता तो ये स्केल भी उसके अकॉर्डिंग फिर चेंज हो जाता। तो ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं सबको?
इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, और ये वही वैल्यूज हैं जो हमने ऊपर यहाँ पे टेबल में जनरेट करी। तो यहाँ पे आप देखो, बॉल कंट्रोल और एक्सेलरेशन के बीच में, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन और बॉल कंट्रोल के बीच में 0.67 का ही मार्कर आ रहा है। ठीक है, तो ये वही वैल्यू है, सिर्फ इसको यहाँ पे ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, जिससे हमें देख के पता लगे कि कहाँ पे ज्यादा कोरिलेशन है, कहाँ पे कम कोरिलेशन है। तो दिस इज कॉल्ड इज हीट मैप। ओके, हीट मैप बहुत यूज होगा जब आप आगे यूज, जब आगे बड़े डेटा सेट में जब काम करने जाओगे, तो वहाँ पे हमें फाइंड आउट करना पड़ता है कि जो भी हमारा टारगेट वेरिएबल है, टारगेट वेरिएबल किस किस वेरिएबल के साथ में हाईली कोरिलेटेड है, कौन वैल्यू उस पर इफेक्ट डाल रही है, कौन वैल्यू उस पर इफेक्ट नहीं डाल रही है। वो रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे हीट मैप को यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद आता है पैरेलल कोऑर्डिनेट्स। तो ये तीसरे तरीके का ग्राफ है, यहाँ पैंडास डॉट प्लॉटिंग में पैरेलल कोऑर्डिनेट्स करके यहाँ पे आता है, इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये भी पैंडास के अंडर में ही आता है। तो यहाँ पे हम परफॉर्मेंस वही चेक करेंगे कि ओवरऑल स्ट्राइकर, गोलकीपर और लेफ्ट विंगर की जो परफॉर्मेंस है, वो एक्सेलरेशन, एग्रेशन और एजिलिटी के अक्रॉस में क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ें हमने यहाँ पे डाली और इसको इम्प्लीमेंट किया। तो अब इसमें वही वही है, सबसे पहले हमने स्ट्राइकर, गोलकीपर, लेफ्ट विंगर को हमने एक दूसरे डेटा सेट में डाला, और और दूसरे डेटा सेट में डाल के हमने यहाँ पे जो हमारी जो फुटबॉलर्स की जो पोजीशन है, उसको हमने एक अलग अलग डेटा सेट में लेके आए, और एफ और पोजीशन को हमने आपस में कंपेयर किया है। ठीक है, एफ को और पोजीशंस की वैल्यू को हमने यहाँ पे आपस में कंपेयर किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्ट्राइकर, लेफ्ट विंगर और गोलकीपर। सो अगर हम यहाँ पे गोलकीपर की बात करते हैं, तो गोलकीपर्स में एक्सेलरेशन और एजिलिटी ज़्यादा होती है, एग्रेशन कंपैरेटिवली बहुत कम होता है। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ को देख के जो हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, और एक्चुअली वैसे भी अगर कोई गोलकीपर है, तो गोलकीपर हैज टू हैज टू मोर एजाइल, नॉट द एग्रेशन। एग्रेशन किसके अंदर होना चाहिए, जो सेंटर फॉरवर्ड हैं या लेफ्ट विंगर हैं, राइट विंगर हैं। ठीक है, उनके अंदर एग्रेशन ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे सपोज सेंटर फॉरवर्ड ले लेते हैं, हमने यहाँ पे लेफ्ट विंगर की जगह पे सेंटर फॉरवर्ड ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे सेंटर फॉरवर्ड को आप देखोगे, सेंटर फॉरवर्ड एक ही आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे एक ही आ रहा है, और उसमें भी एग्रेशन उसकी एक्सेलरेशन और एजिलिटी से कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। ठीक है, तो वो मेरा अजम्पशन था कि जो सेंटर फॉरवर्ड है उनमें एग्रेशन ज़्यादा होना चाहिए। मैंने कभी फुटबॉल खेली नहीं, और मुझे देखता भी नहीं हूँ, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। सो बेसिकली यहाँ पे आप जो देख रहे हो, वो एक जो मैंने स्टेटमेंट दिया था, दैट वाज जस्ट अ गेस स्टेटमेंट कि जो सेंटर फॉरवर्ड है उसको, उसके अंदर एग्रेशन ज़्यादा होना चाहिए, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। ठीक है, स्ट्राइकर्स हैं, स्ट्राइकर्स में देखो एक्सेलरेशन और एजिलिटी कम है, एग्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, जितने भी आप स्ट्राइकर देखो कंपैरेटिवली, जो वैल्यूज दिख रही हैं उसमें हमें एग्रेशन ज़्यादा दिख रहा है, और एक्सेलरेशन, एजिलिटी हमें कंपैरेटिवली कम नज़र आ रही है। ठीक है, सो इस तरह से आप यहाँ पे पैरेलल कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट करके देख सकते हो। इसके बाद आता है एक स्वैम प्लॉट आता है। ठीक है, स्वैम प्लॉट। तो स्वैम प्लॉट के लिए यहाँ पे एक दूसरा डेटा सेट लिया हुआ है। दिस डेटा सेट इज अबाउट द टाइटैनिक डेटा सेट, बहुत पॉपुलर डेटा सेट है। इफ यू वांट आई विल गिव यू दिस डेटा सेट, आप इस पे चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो, और इसी पे हम अपनी ईडीए भी परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जो कि हम अगर आज टाइम मिला तो हम स्टार्ट करेंगे, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको ज़रूर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, ये हमने यहाँ पे टाइटैनिक का डेटा सेट लिया, और टाइटैनिक के डेटा सेट में हमने अब यहाँ पे देखो हमारे पास डेटा सेट में क्या है, पैसेंजर आईडी है, तो हर पैसेंजर को एक आईडी मिलती है। इसके बाद
टाइटैनिक वाले डेटा, टाइटैनिक वाले जो इंसिडेंट है उसमें जितने सर्वाइव हुए जितने नहीं सर्वाइव हुए वो यहाँ पे सर्वाइव्ड में इंडिकेट हो रहा है। तो 0 मीन्स नॉन सर्वाइवर एंड 1 मीन्स सर्वाइवर। सर्वाइवर। ठीक है। फिर पैसेंजर क्लास है, नेम है, सेक्स है, एज कितनी एज है उनकी, सिबलिंग कितने हैं, देन कितने पेरेंट चाइल्ड ट्रेवल कर रहे हैं, देन टिकट नंबर, फेयर, केबिन एंड एम्बार्क्ड। तो ये सारी चीजें हैं, हमने यहाँ पे ये प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है। तो स्वाम प्लॉट यहाँ पे अब यहाँ पे हम कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली सर्वाइव्ड और फेयर के बीच में हम कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो हमारा वाई एक्सेस पे हमारा फेयर है, और एक्स एक्सेस पे सर्वाइव्ड हुए या नहीं वो यहाँ पे हम डाल रहे हैं। ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसमें हमारे पास अगर सपोज यहाँ पे कलर नहीं है, हम कलर हटा देते हैं, तो अगर सिर्फ हम यहाँ पे विदाउट कलर बात करते हैं तो विदाउट कलर में क्या होगा, ये सर्वाइव वाले अलग दिखाई देंगे, और ये सर्वाइव 1 वाले अलग दिखाई देंगे, और सर्वाइव 0 वाले अलग दिखाई देंगे। सर्वाइव 0 मीन्स द पैसेंजर डिड नॉट सर्वाइव, एंड सर्वाइव 1 मीन्स पैसेंजर सर्वाइव 100%। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम सिर्फ ये कलर छोड़ दो, अगर हम सिर्फ नॉर्मल देखते हैं तो पैसेंजर क्लास यहाँ पे है। पैसेंजर क्लास में यहाँ पे ऊपर आपको 3 डॉट दिख रहे हैं, राइट। इन 3 डॉट का मतलब है कि ये कुछ ऐसे स्पेशल पैसेंजर्स थे जिन्होंने बहुत हाई फेयर पे किया था, और उसकी वजह से उनको जो लोकेशन मिली थी या जो सीटिंग मिली थी वो ऐसी मिली थी कि वो वहां से आराम से बच सकते थे, राइट। वो वहां पे आराम से बच सकते थे, इसलिए उन्होंने सरवाइव भी कर लिया। ये अगेन ये मेरा गैस हो सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं 100% सही कह रहा हूँ। इन डेटा साइंस जब आप काम करना शुरू करोगे तो नथिंग इज 100% करेक्ट एंड नथिंग इज 100% रॉन्ग, राइट। यहाँ पे जो मुझे डेटा से दिखाई दे रहा है वो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इसने ये कुछ ऐसे पैसेंजर है। अब देखो यहाँ पे लगभग 280 से और 500 के बीच में तो शायद किसी ने पेमेंट भी नहीं की है, राइट। तो वो हमारे इसमें सिनेरियो में भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसकी बात करते हैं, ये 3 डॉट है, तो ये कुछ ऐसे पैसेंजर हैं जिन्होंने बहुत हाई फेयर पे किया है और वो सरवाइव भी कर गए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कलर्स हैं, राइट। पैसेंजर क्लास के बेस पे कलर दिया गया है। ठीक है। पैसेंजर क्लास के बेस पे कलर दिया गया है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट फर्स्ट क्लास के पैसेंजर हैं वो ब्लू हैं, सेकंड क्लास के हैं वो रेड हैं, और थर्ड क्लास के पेशेंट हैं वो थर्ड क्लास के जो पैसेंजर्स हैं वो ऑरेंज से हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो हमारे ब्लू वाले हैं, जो ब्लू वाली पैसेंजर क्लास है, वो ब्लू वाली पैसेंजर क्लास अगर आप देखो तो यहाँ पे सर्वाइव्ड में काफी ज्यादा है, जबकि नॉन सर्वाइव्ड में हमारे पास जो ब्लू वाले हैं वो कंपैरेटिवली कम है। अब ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली कम है। ठीक है। अंडरस्टूड। अंडरस्टूड। बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारे फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स हैं उनके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू नॉन सर्वाइवल, राइट। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ऐसी भी है, आप देख सकते हो यहाँ पे 0 पैसेंजर वाले भी दिख रहे हैं, और इसमें 0 पैसेंजर वाले में हमें यहाँ पे फर्स्ट क्लास के लोग भी दिख रहे हैं जिन्होंने कुछ भी किराया पे नहीं किया है या ऑलमोस्ट ना के बराबर किराया पे किया है, वो भी यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये कौन हो सकते हैं? सी इन दिस वे यू हैव टू थिंक। आप किसी भी यहाँ पे जो डेटा में हमें दिख रहा है वो तो हमें दिख रहा है, लेकिन उसको इंटरप्रेटेट कैसे करना है इसके लिए अब आपको बहुत सारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बहुत सारी थिंकिंग, बहुत सारी थियरीज क्रिएट करनी पड़ेंगी। तो अभी यहाँ पे जो आपको यहाँ पे आप सोच के बताओ कि जो यहाँ पे 0 फेयर वाले जो बंदे दिख रहे हैं यहाँ पे पैसेंजर क्लास में हैं, अब ये हैं भी फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स में, और हमें इन्होंने किराया भी कुछ नहीं पे किया है। ये किस टाइप के हो सकते हैं, और उनके वो सर्वाइव भी नहीं हुए हैं, जबकि
अगर ऐसे बंदे हैं जो फर्स्ट क्लास के, उनके सर्वाइवल के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा हैं, लेकिन उन्होंने सर्वाइव नहीं किया। क्यों? कैन एनीबडी टेल? कोई बता सकता है? सोचो सोचो। मान्या, योगेश, योगी, चिंकी, तान्या, श्रेया, सचिन। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू परसीव योर डेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप सोचोगे तो आपका बेनिफिट होगा, नहीं सोचोगे तो मेरा बेनिफिट तो हो ही रहा है। मेरा तो रिवीजन ही चल रहा है। मैं जितनी बार पढ़ूंगा मेरा रिवीजन हो जाएगा। पिछले 3 महीने से तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ यही चीज, मेरा रिवीजन हो रहा है, मुझे मजा आ रही है। आप बताओ। चलो, कोई नहीं बता रहा है, किसी को कुछ ध्यान नहीं आ रहा है। तो शायद ये, कोई कुछ बोल रहा है? देखो, बोलो बोलो, अगर गलत बोलोगे कोई, मैंने पहले ही सेशन में कहा था कि अगर गलत बोलोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ कोई कोई कुछ नहीं जानता है। ठीक है, गलती करो, फ्री ऑफ कॉस्ट गलती करो। ओके चलो। तो ये पैसेंजर जो ये ब्लू वाले हैं, वो ये हो सकते हैं जिन्होंने किराया भी नहीं पे किया है। ये मे बी आपके जो शिप के जो कैप्टन्स होते हैं, शिप के जो मेन अधिकारी जो होते हैं, जो बिल्कुल टॉप टॉप लेवल के लोग होते हैं, जिनके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट फ्रॉम सेफ्टी ऑफ एवरी पैसेंजर एंड हाउ एवरीथिंग विल बी मैनेज्ड इन केस ऑफ द क्राइसिस। वो हाई लेवल के लोग होते हैं। और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब तक एक भी पैसेंजर हमारा शिप के अंदर है, तब तक आप शिप छोड़ के नहीं जा सकते। या वो उनकी एक ड्यूटी होती है कि दे दे हैव अ बेसिक राइट ऑफ, बेसिक ड्यूटी ऑफ दैट। ओके। सो ये वो पैसेंजर्स हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर शिप पे ट्रैवल कर रहे हैं तो वो भी तो पैसेंजर्स ही हैं। राइट। तो ये उस टाइप के पैसेंजर्स हो सकते हैं। ठीक है। देन कुछ और चीज़ें अगर हम यहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहें, तो कुछ और चीज़ों में क्या है हमारे पास? यहाँ पे और देखोगे तो ये सारी चीज़ें हैं। अम, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें जो सेकंड क्लास के पैसेंजर्स हैं, कंपैरेटिवली काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं इन कंपैरिजन टू फर्स्ट क्लास एंड थर्ड क्लास। सेकंड क्लास के पैसेंजर्स काफ़ी कम हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है हमें? ऐसा दिखाई दे रहा है हमें? इससे ओके। अब ऐसा क्यों है? हो सकता है कि सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास के बीच में फेयर में ज़्यादा डिफरेंस ना रहा हो, तो लोगों ने कहा कि अरे सेकंड क्लास जाएंगे, इससे इससे बेहतर है कि हम फर्स्ट क्लास ही चले जाएंगे। ठीक है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। हो सकता है कि शिप वालों ने सेकंड क्लास की ज़्यादा सीट्स ओपन ही ना की हों, दैट कैन बी द पॉसिबिलिटी। इसलिए सेकंड क्लास के पैसेंजर्स हैं ही नहीं, वो रिकॉर्ड में ही नहीं है। जब रिकॉर्ड में नहीं है तो हमें यहाँ पे भी नहीं दिखाई देंगे। ठीक है। तीसरी चीज, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जीरो का अगर आप देखोगे तो इसमें जो पैसेंजर क्लास 3 है, इसमें उनकी नॉन उनकी सर्वाइवल की पॉसिबिलिटी बहुत हमें कम दिखाई दे रही है। राइट। उसमें कंपैरेटिवली जो अगर आप जीरो में देखोगे तो कंपैरेटिवली उसमें ऑरेंज की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू रेड एंड ब्लू। राइट। यहीं आप अगर सर्वाइवल में देखोगे तो सर्वाइवल में पैसेंजर क्लास 1 की जो सर्वाइवल पॉसिबिलिटी है, सर्वाइवल के चांसेस हैं, दैट आर मच मच मोर हायर देन द पैसेंजर 1, सॉरी, देन द अदर क्लास पैसेंजर। राइट। तो दिस कैन दीज ऑल कैन बी डेराइव। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आप खुद से डेराइव कर सकते हो ग्राफ देख के। ये मैंने आपको छोटी सी चीज बताई है अभी, और जब हम ईडीए करेंगे तो हम इसमें और भी बहुत सारी डिटेल्स होंगी, वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि कैसे चीजें हमारे पास काम कर रही हैं और कैसे ये सारी चीजें वर्क करती हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, ग्रेट।
ना, और आगे देखते हैं थोड़ा। ठीक है, आज इसको खत्म कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम यही करेंगे। तो यहाँ पे इंटरैक्टिव चार्ट्स बनाने होते हैं। ठीक है, इंटरैक्टिव चार्ट्स का क्या मतलब होता है, जहाँ पे आप चार्ट के साथ में डायरेक्ट इंटरैक्शन कर पाएं और उसको बना पाएं। तो उसके लिए यहाँ पे हम बोके को यूज़ करते हैं। जैसे बुके होता है ना, फूल जैसा, बुके सुना होगा सबने। वैसे यहाँ पे बोके पैकेज होता है। बोके पैकेज को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो विजुअलाइजेशन है वो आपके डायरेक्ट वेब ब्राउजर के थ्रू ही आप विजुअलाइजेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको अगर आप यहाँ पे हम ओपन करके आप देख सकते हो, यहाँ पे बोके का पूरा ट्यूटोरियल आपको है, आपके पास है। और इसमें अलग अलग तरीके के प्लॉट हैं जिससे आप इंटरैक्टिव प्लॉटिंग को भी डेवलप कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे एक कलर मैपर ही यहाँ पे ले लेते हैं सपोज। ठीक है, अब इस कलर मैपर का पूरा कोड है, और कोड के साथ में आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये हमें अलग अलग प्लॉट्स यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इन प्लॉट्स को अगर आप यहाँ पे अभी यहाँ पे कौन कौन सी एपीआई से यूज़ किए हैं, तो स्कैटर एपीआई है, कॉलम डेटा सोर्स है, कलर बार है। तो ये जो एपीआई यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, ये कंपैरेटिवली इन सारी इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स को बनाने में इसमें हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, और कोई अगर आप यहाँ पे उठा के देखना चाहते हो, ठीक है, तो सपोज हम यहाँ पे ट्रांजिशन मार्कर्स लेते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन मार्कर्स, हाँ ये थोड़ा सा इसमें देखो। अब ट्रांजिशन मार्कर्स में फ्लिपर लेंथ और बॉडी मास के बीच में यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे अगर आप इसको जूम करके देखना चाहो, तो यहाँ पे आप ये जूम की कैपेसिटी होती है, ये अनजूम की होती है। आप इसको एज अ इमेज डाउनलोड करना चाहो, तो यहाँ पे एज अ इमेज भी आप उसको डाउनलोड करके रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे ये फाइल खुल के आई है। ठीक है, तो ये पीएनजी फॉर्म में आप इस पूरे जो ग्राफ है उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हो। सो ये जो पीएनजी फॉर्म में पूरे ग्राफ का रिजल्ट डाउनलोड होके आ गया है। ठीक है, फिर आप इसमें साइज को छोटा करना है, साइज को बड़ा करना है, वो भी आप देख सकते हो। जैसे आप अपना गूगल मैप छोटा बड़ा करके देखते हो ना, वैसे ही आप यहाँ पे इसको भी छोटा बड़ा करके देख सकते हो। तो यहाँ पे ये है आपका। ठीक है, तो इसमें हम छोटा बड़ा करके भी यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप जूम वगैरह भी देख सकते हो। केवल केवल एक्स एक्सेस जूम करना चाहते हो या वाई एक्सेस एक्सपेंड करना चाहते हो, पूरा जूम करना चाहते हो, कंप्लीट जूम करना चाहते हो, कुछ सेव करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे बहुत आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो बोके पैकेज बेसिकली आपको इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाने के लिए हेल्प करता है। लेकिन अगेन, बोके पैकेज सिर्फ आपको जो जो भी आपका इम्प्लीमेंटेशन उसको डायरेक्टली बस विजुअल फॉर्म में लाने में मदद कर रहा है। बाकी जो चीज़ें उसमें इम्प्लीमेंट हो रही हैं, वो सारी वही इम्प्लीमेंट हो रही हैं जो पैंडाज में पड़ी हैं। ठीक है, तो ऐसे इस तरह से बहुत सारे पैकेज होते हैं। तो हमने यहाँ पे एसएनएस भी देख लिया है, हमने मैट प्लॉट लिब भी देख लिया है, एक एक यहाँ पे ये बोके भी देख लिया। तो अम, ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। मोस्टली क्या है कि आपको जब इसमें इम्प्लीमेंट करोगे, तो आपको जो 90% टाइम पे तो आपको अपनी पैंडाज ही इम्प्लीमेंट करनी है। जैसे ये देखो, जितना भी ये स्लाइडर का इम्प्लीमेंटेशन अभी यहाँ पे लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे जो स्लाइडर का इम्प्लीमेंटेशन है, ये स्लाइडर का इम्प्लीमेंटेशन भी आप पैंडाज के थ्रू ही कर रहे हो। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे ये भी है। अम, ये वाला पार्ट है। मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ एक बार, थोड़ा सा टाइम लगेगा एग्जीक्यूशन में। यहाँ पे हम इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं यहाँ पे। ठीक है,
तो अब यहाँ पे ये चारों प्लॉट एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे ये देखो इस तरह से ये एक पूरा ग्राफ जनरेट हो गया है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जिससे आप लोगों को अ, पूरा ग्राफ एक स्क्रीन में दिखाई दे। अच्छा, अच्छा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि अब यहाँ पे यहाँ पे हमें ऊपर ये स्लाइडर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये स्लाइडर क्या है? यहाँ पे आप देखोगे तो स्लाइडर वाइज यहाँ पे ये नंबर भी यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ और यहाँ पे अगर राइट साइड में देखोगे तो यहाँ पे स्लाइडर वाइज यहाँ पे वो जो हमारे पास क्या है, पोजीशन। तो पोजीशन की भी यहाँ पे ये रैंकिंग चेंज हो रही है, तो हर पोजीशन के लिए एक अलग ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे देखो हर पोजीशन के लिए एक अलग ग्राफ यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब ये पूरी प्रोसेस कैसे हो रही है? ये प्रोसेस आपकी पूरी पैंडास के थ्रू ही हो रही है। यहाँ पे ये सारे जितने भी आपके जो ये क्या बोलते हैं पोजीशंस है उनको यहाँ पे लिया गया है, और उन पोजीशंस को यहाँ पे बोके प्लॉट के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया है। यहाँ पे अपडेट प्लॉट है। अपडेट प्लॉट में हमने यहाँ पे पोजीशंस को हमने इसमें यहाँ पे जो हमारी लिस्ट है, ये वाली लिस्ट जहाँ पे इसमें हमने डाल दिया है। ठीक है, इसके थ्रू ये सारी इम्प्लीमेंटेशन रन हो रही है। तो बेसिकली अब इसमें करना कुछ नहीं है। यहाँ पे मेनली चीज़ है कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है ये सब पैंडास के थ्रू हो रहा है। तो पैंडास में इसमें क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो सारी चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है, राइट? सो आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ें कैसे प्रोसेस हो रही हैं। मोस्टली जब आप इंटरव्यूज वगैरह के लिए जाओगे तो आपको बुकेज वगैरह में नहीं लेके जाएंगे। मोस्टली जो आपका इंटरव्यू होता है वो मोस्टली बेसिक ग्राफ्स, आपको आपके ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग कैसी है कि आपको यूनिवेरिएट बाईवेरिएट में डिफरेंस पता होना चाहिए, कब कौन सा ग्राफ किस टाइप की वैल्यूज को सेलेक्ट करनी है, कहाँ पे सेलेक्ट करनी है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, राइट? और बस इतना आप करते हो तो बहुत आसानी से सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, अंडरस्टूड? एनी डाउट? So before going with this bouquet implementation, I want you to have the complete practice of pandas and then visualization and after that EDA. So कल से हम EDA start करेंगे, EDA exploratory data analysis, जिसमें एक दो दिन हम मुझे उसे भी समझाने में लगेंगे। अगेन जो भी हम EDA करने जा रहे हैं, EDA is also just the implementation. 90% implementation is of बेसिक पाइथन, राइट? नॉट नथिंग एडवांस। तो आप अगर आप जितनी पाइथन की प्रैक्टिस करोगे आपको ईडीए उतनी अच्छे से समझ में आएगी और आप खुद से भी कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इम्प्लीमेंट करो। एंड कुछ लोगों का कहना था